أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جلد سوم، حکایت نمبر 61۔ ہر جانور کا دشمن کی بو کو پہچاننا اور بچنا۔ اس شخص کی بربادی جو کہ ایسے شخص کا دشمن بن جائے جس سے فرار یا مقابلہ ممکن ہی نہ ہو۔ ہر جانور اپنے دشمن کی بو کو پہچان لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بدبخت چمگادڑ ہے جو کہ سورج سے دشمنی رکھتا ہے، حالانکہ جانتی ہے کہ اس سے بچ نہیں سکتی۔ سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے اور چمگادڑ اسے روک نہیں سکتی۔ اسی طرح سب سے بدبخت وہ ہے جو آفتاب حقیقی یعنی ولی سے دشمنی برتے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم کا کرم ہے کہ وہ منکرین کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں اور ان کا نقصان نہیں سوچتے۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ساتھ دشمنی بری ہے۔ دشمنی اگر کی بھی جائے تو ایسے شخص کے ساتھ کی جائے جس کو انسان مغلوب کر سکے۔ اولیاء رحمت اللہ علیہم تو اللہ کے شیر ہوتے ہیں۔ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ساتھ عام انسان کی دشمنی ایسی ہے جیسے قطرہ سمندر سے دشمنی کرے، جو کہ محض اس کی حماقت ہے۔ عوام کی دشمنی اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ان کا دشمن تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا۔ ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوا اور یہ خود اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ سے انسان کی دشمنی اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال بے پایاں ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی بے پایاں ہے۔ انسان کا رحم غم سے ملا جلا ہوتا ہے۔ کسی مجبور کو دیکھ کر انسان پر غم طاری ہوتا ہے، پھر اس کی رحمت ابھرتی ہے۔ اللہ کی رحمت ان باتوں سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی عقل سے بالاتر ہیں۔ اس کی صفتوں کو ان کے اثرات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہماری عقلوں میں ان صفات کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس طرح بچہ جمع کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، جب حقیقت کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو اس چیز کو مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ وہ علم جو مثال سے حاصل ہو اس کو اس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مثال سے اس چیز کا کلی علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی کچھ سمجھ آتی ہے، مکمل نہیں، تو اسے اس چیز کا جہل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ حقیقت تو نامعلوم ہے۔ عوام کے علم کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ کامل لوگ ماہیتوں اور ان کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت الہیہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات عقل اور سمجھ سے دور تر ہیں، پھر بھی کامل اولیاء رحمت اللہ علیہم ان سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ کامل لوگ جب کہ ذات و صفات احدیت کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو کائنات کی ذات و صفات ان پر کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ فلسفی کی عقل جب تک کہ کچھ چیز وقوع میں نہ آ جائے اسے ناممکن کہتی ہے، جب اس کا وقوع ہو جاتا ہے تو ممکن سمجھتی ہے۔ فلاسفہ پہلے زمین کو متحرک نہیں مانتے تھے، لیکن ثبوت مل جانے پر زمین کو متحرک مان لیا گیا ہے۔ جب انسان مجاہدے کرتا ہے تو 5 ظاہری حواس اور 5 باطنی حواس کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور کشف و شہود کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جلد سوم، حکایت نمبر 62۔ ایک چیز کے بارے میں اقرار و انکار کا جمع ہونا اور نہ ہونا جہت اور نسبت کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی دشمنوں پر پھینکی، جس کی وجہ سے وہ اندھے اور شکست خوردہ ہو گئے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ مٹی پھینکی تو پھینکنے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئی، اور چونکہ اس پھینکنے نے وہ کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ज़ाती न था, इसलिए फेंकने की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से नफी कर दी गई। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो फरमाया गया वो औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम पर भी सादिक है, लेकिन मुनकरीन उनको ऐसा ही जानते हैं जैसा कि वो अपनी औलाद को जानते हैं। फिर फरमाया गया है कि औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम मेरे दामन में छुपे हुए हैं और उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता है। चूंकि जानना और ना जानना दो हैसियतों से है, लिहाजा दोनों बातें दुरुस्त हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तेरा जानना और ना जानना भी इसी एतबार से समझ ले। हैसियत और जहत बदल जाने से दो मुतजाद हुक्म बहुत सी चीज़ों पर लगाए गए हैं। किसी की फना और बका का मसला भी इसी नौइयत का है कि मुख्तलिफ हैसियतों से उसको फ़ानी और बाकी कहा जाता है। यानी अगर वो मौजूद है तो अपनी ज़ात के एतबार से नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात के एतबार से फ़ानी है और उसे बका बिल्ला हासिल है। दिन में सूरज के सामने शमा रोशन करो तो उस पर मुतजाद हुक्म लग सकते हैं। चूँकि आफताब की रोशनी के सामने उस शमा की रोशनी मांद पड़ गई है तो कह सकते हैं कि वो रोशन नहीं है, और इस हैसियत से कि अगर उसकी लौ पर रुई रखो तो वो जल जाएगी, तो तुम कह सकते हो कि शमा रोशन है। अगर 200 मन शहद में एक सेर सिरका मिला दो तो कह सकते हैं कि सिरका मदूम है, चूंकि चखने में इसका मजा नहीं आता। और ये भी कह सकते हैं कि सिरका मौजूद है, कि वजन करेंगे तो मालूम हो जाएगा। हरन जब शेर के सामने बेहोश हो गया तो वो फानी भी है और बाकी भी है। फनाओ बका में ये मिसालें जो दी गई हैं वो हजरत हक के शायान शान नहीं है, लेकिन उसका बयान करना इश्क व मोहब्बत के जोश में हुआ है। इश्क इलाही का दावा एक दर्जा में बराबरी का दावा है, इसलिए आशिक और माशूक में ला महला कोई निस्बत होती है और मुमकिन वाजिब के साथ कोई मुनासिबत नहीं रखता। आशिक इश्क की मस्ती में गुस्ताखाना बातें बोल जाता है, लेकिन वो गुस्ताखी उस वक्त गुस्ताखी है जब उसकी निस्बत आशिक की तरफ हो, लेकिन चूंकि उसको फना का दर्जा हासिल है और वो बातें उसकी ज़ात से मंसूब नहीं है, इसलिए वो गुस्ताखी नहीं है। उसका बाअदब होना और बेअदब होना भी निस्बत के इख्तिलाफ से सही है। अगर वो बातें उसकी ज़ात की तरफ मंसूब हों तो बेअदब है, और अगर ज़ात बारी की तरफ हो तो ये बाअदब है। बबातिन चूंकि उसको फनाफिज ज़ात का मर्तबा हासिल हो गया है, इसलिए उसका अपना कोई दावा है ना कोई ज़ात। फना के बाद फाइल बनने की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती, लिहाजा फेल की उसकी तरफ निस्बत नहीं की जा सकती। जिल्द सोम हिकायत नंबर 63। सदरे जहां के वकील का किस्सा जो मुत्तहम हो गया था और जान के डर से बुखारा से भाग गया, फिर इश्क ने उसे खींचा कि महबूब के लिए जान देना आसान होता है। इस किस्से में यह बताना मकसूद है कि वो वकील अपनी जान से कता नजर करके अपने बादशाह के सामने पेश हो गया। इसी तरह आशिक अपनी ज़ातो सिफात से कता नजर कर लेता है। बुखारा के सदरे जहां गवर्नर का एक गुलाम मुत्तहम हो गया और इसके दरबार से गायब हो गया। 10 साल तक मारा मरा फिरता रहा, लेकिन उसके इश्क के बायस बेबस हो गया। दोस्तों की जुदाई अकल को ऐसा मबहूत कर देती है जिस तरह तीरंदाज कमान टूट जाने से परेशान व मबहूत हो जाता है। खुदा की रहमत से जुदाई में जहन्नम पुरसोज बनी हुई है। बैद का दरख्त ताकत के फराक में लरसता है। फराक के असरात का बयान क़यामत तक मुमकिन नहीं। इसके असरात की तफसील में पढ़ने की बजाय अल्लमान अल्लमान कहना चाहिए। दुनिया की खुशकुन चीज़ों ने बहुत सौ को फराक की सख्ती में मुब्तला किया है। अगर मुब्तला होने से पहले ही तू उस चीज़ को अपने दिल से हटा लेगा तो फराक की मुसीबत से बच जाएगा। जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने खुदा की पनाह हासिल की थी, तू भी खुदा की पनाह हासिल कर ले। जिल्द सोम हिकायत नंबर 64। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आदमी की सूरत में बरहंगी की हालत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने आना और उनका अल्लाह की पनाह मांगना।
حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے گوشہ تنہائی اختیار کر لیا تھا۔ وہ برہنگی کی حالت میں تھیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے سے حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں، برہنہ تھیں۔ وہ سمجھی کہ کوئی خرابی پیش نہ آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسی حسین صورت میں نمودار ہوئے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھتے تو ان کے حسن سے مبہوت ہو کر اسی طرح اپنا ہاتھ کاٹ لیتے کہ جس طرح زنان مصر نے ان کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے گھبرا کر فرمایا، میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں وہ خدا کی پناہ چاہ لیتی تھی، کیونکہ اللہ کی پناہ سے بہتر اور کوئی قلعہ نہیں ہے۔ عصر مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کے وجود کی دلیل ہوں۔ اس کے علاوہ ذات باری کی جو تعبیرات ہیں وہ صحیح تعبیرات نہیں ہیں۔ ہماری دلیل اور ادراک کے وجود باری سے وہی نسبت ہے جو خرلنگ اور ہوا پر سوار کی نسبت ہے۔ ذات حق انسان سے قریب بھی ہے اور اس کے ادراک سے بعید بھی ہے۔ انسان کے جس قدر ادراکات ہیں وہ کوئی بھی اس کی حقیقت تک پہنچ کر مطمئن نہیں ہے، لیکن پھر بھی جستجو جاری رہنی ضروری ہے۔ انسانوں کے ادراکات مختلف ہیں اور کسی کا ادراک تیز ہے اور کسی کا ادراک ہر وقت متردد۔ تجلی الہی کے امیدوار کے لیے ہر حال میں کوشش میں لگے رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ تجلی کے ادراک سے محروم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ جیسے شکاری ایک آنکھ بند کر کے منتظر رہتا ہے کہ شکار آئے، اسی طرح ہمہ وقت الہی شکار کے منتظر رہو۔ تجلی کی جو معمولی سی جھلک نظر آئے اس کے ہمیشہ انتظار میں رہو۔ مایوسی سے یہ بھی نہ سوچو کہ وہ واقعی کوئی تجلی تھی یا محض غیر واقعی خیال تھا۔ ان حالات میں سالک کے لیے مناسب ہے کہ وہ آرام کرے تاکہ اس میں طاقت پیدا ہو اور پھر مجاہدہ کر سکے۔ اللہ نے رات کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس میں آرام کرے اور دن بھر کی تھکن دور ہو جائے۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی کے لالچ میں تم ہر وقت مصروف کار رہ کر بدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ قبض کی حالت میں وہ تمام قوائے باطنی مجتمع ہو جاتے ہیں جو بسط کی حالت میں خرچ ہو رہے تھے۔ قبض کی حالت میں سالک کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اپنے لیے مفید سمجھنا چاہیے۔ جیسے مختلف موسم اپنے اپنے لحاظ سے مفید ہوتے ہیں، بست کی حالت میں خوش رہنا بھی طفلانہ حرکت ہے۔ اس کے زیادہ خواہش مند نہ بنو۔ بچہ ہمیشہ عارضی خوشیوں سے خوش رہتا ہے۔ عقل مند کے پیش نظر آخرت رہتی ہے۔ دنیاوی لذتوں کو کسائی کے بکرے کو کھلائی گھاس سمجھو۔ اصل خوراک تو دین کا لقمہ ہے جو کہ اہل یقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کا رزق کھاؤ۔ اس رزق سے مراد حکمت ہے، نہ کہ دنیاوی غذائیں۔ یہ رزق وہ ہے جس پر کوئی اخروی مواخذہ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یعنی اپنی پیٹ کو خوراک سے خالی کر تاکہ تو اس میں معرفت کا نور دیکھے۔ دنیاوی لذتیں ترک کرنے سے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے لگے گا۔ میں نے یہ مضمون پوری طرح واضح نہیں کیا۔ اگر راستے کو پورا سمجھنا ہو تو حکیم سنائی کا الہی نامہ پڑھو۔ قصہ مختصر یہ کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے۔ آخرت کا اس دنیا میں غم تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا۔ عقل مند انسان انگور میں شراب اور عاشق معدوم میں موجود کو دیکھتا ہے۔ تو بھی غم امروز کے پیچھے مسرت فردا کو دیکھ لے۔ جب کوئی مزدور کسی انسان سے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی جانب سے جو مزدوری ملے گی اس کے لیے کیوں نہ مشقت برداشت کر لی جائے۔ یہ ایسی مزدوری ہوگی جو قبر میں تیرے کام آئے گی۔ آنے والی موت کے دن کے لیے اسی دنیا میں مردہ بن جا تاکہ سرمدی عشق کا ساتھی بن جائے۔ موت سے پہلے ہی دنیا اور اس کی لذتوں کو خیر بات کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ اپنی مٹھی کو نہ ہمیشہ کھلا رکھنا مناسب ہے اور نہ ہمیشہ بند۔ پرند کی پرواز اسی وقت درست ہوتی ہے جب دونوں پر بر وقت کھلیں اور بر وقت بند ہوں۔
जिल्द सोम हिकायत नंबर 65। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कहना कि मैं अल्लाह का कासिद हूं, मुझसे परेशान ना हो और ना चुप हो। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अचानक सामने रूनुमा हो जाने से तड़पी तो रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मुझसे न डरें, मेरे वजूद से डरकर ना भागें। मैं तो मुल्क के अदम से आया हूं, मैं मुजस्सिम भी हूं और एक ख्याल की सूरत भी हूं। जब कोई ख्याल तुम्हारे दिल में आता है तो तुम कहां भाग कर जा सकते हो। लाहौल का मतलब है कि ताकत सिर्फ अल्लाह ही की है, तो जो चीज खुद अल्लाह ही की ताकत से नमूदार हो उस पर लाहौल पड़ना बेकार है। अब तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ना पहचानने का बयान था। पहचान बहुत अच्छी चीज होती है। अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचान लेती तो उनसे हरगिज न डरती। ऐ इंसान, तेरा महबूब हकीकी तो तेरे पास है और तू उसको नहीं पहचानता है और ना इससे मोहब्बत करता है। खुदा के साथ तेरा मामला बिल्कुल गैरों का सा है। खुदा की इस कदर मेहरबानियां होते हुए उससे दूर रहना बड़ी बेवफाई है। अल्लाह की रहमत के असबाब हमारी नाफरमानी की वजह से ज़हमत के असबाब बन गए हैं। दुनिया का भी यही दस्तूर है कि अगर दोस्त से दोस्ती न बरतो तो वह दुश्मनी पर उतर आता है, यानी दोस्त का जिस्म तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। पहले तुम्हारी किसी नाजेबा हरकत की वजह से उसके मिजाज में तगय्युर आता है और वही मिजाज का तगय्युर बढ़ते बढ़ते नफरत का सबब बन जाता है। जिल्द सोम हिकायत नंबर 66। मोहब्बत की वजह से उस वकील का सदरे जहां के पास बुखारा में वापस आ जाना। गुलाम वकील का दिल सदरे जहां की तरफ खींच रहा था और वो खुद ब खुद बुखारा की तरफ जा रहा था। हर इंसान के लिए उसका बुखारा ही उसकी मोहब्बत का मरकज है। जब तू शायख के सामने है तो बुखारा में है। उस बुखारा को हरगिज जिल्लत से न देखना। शायख का दिल तुम्हारा बुखारा है। इस दिल में उस वक्त जगह पाओगे जब अपने आप को उसके आगे खवार और जलील बना लोगे। माशूक जो कुछ भी आशिक के बारे में सोचे वो आशिक के नजदीक भला ही होता है। खुश नसीब है वो जिसका नफ्स फर्मा बरदार हो गया। सदरे जहां की जुदाई जो उसके दिल में थी उसने उसे परेशान कर दिया। उसने सोचा मैं अभी जाता हूं और अपने आप को सदरे जहां के कदमों में डाल देता हूं। मैं कहूंगा मैंने अपनी जान तुम्हारे सामने डाल दी है, तू जो चाहे कर। तेरे सामने कत्ल होना किसी दूसरी जगह शाह होने से बेहतर है। मैं तेरे बगैर अपनी जिंदगी को फीका समझता हूं। अगर सदरे जहान ने अपना दिल संगे खारा की तरह बना लिया है तो आशिक के नजदीक वतन की मोहब्बत के ये मानी है कि जहां उसका महबूब है इस जगह से भी मोहब्बत करे। एक शख्स ने एक आशिक से पूछा, तूने दुनिया भर के शहर देखे हैं, बता कौन सा शहर सबसे अच्छा है। उसने जवाब दिया, वो शहर जिसमें मेरा महबूब रहता है। जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम हो वहीं जन्नत है, चाहे वो कुआं हो। महबूब के साथ तकलीफ दे मुकाम भी राहत का सबब है। महबूब की जुदाई में अगर जन्नत भी हो तो दोज़ख की तरह है। रास्ते में जो दोस्त भी उसे मिला उसने मशवरा दिया कि अगर तू वहां जा रहा है तो दीवाना है, क्योंकि सदरे जहां तुझे कत्ल करा देगा। खुदा ने तुझे मौका दिया है, कहीं और भाग जा। उसने जवाब दिया कि मैं इश्क का कैदी हूं और इस इश्क को वो डराने वाले नहीं देख रहे। जिस तरह उस वकील पर एक गैबी मुवक्कल मुसल्लत था, इसी तरह हर इश्क के सिपाही पर एक और सिपाही मुसल्लत है जो उसकी निगहबानी करता रहता है। अक्ल का तकाजा है कि इंसान गिरफ्तार करने वाले सिपाहियों से गुरेज करे। इंसान इस बर्बाद करने वाले सिपाही से गाफिल है, वरना वो अल्लाह से दुआ करता और अपनी निजात चाहता। ये सिपाही हमें महबूब की तरफ जाने से रोकता है। इंसान अपने आप को आज़ाद समझता है, इसलिए उस गैबी सिपाही को नहीं देख पाता। वो ज़वाल पजीर दौलत और रुतबे से धोखे में पड़ जाता है और वही दौलत उस रुतबे की मोहब्बत उसको तबाह कर देती है। अगर इंसान दौलत और गुरूर से निजात पा जाए तो वो आलम बाला की तरफ प्रवास कर सकता है। उसने कहा, ऐ नसीहत करने वाले चुप हो जा, तेरी नसीहत मेरी कैद को ज्यादा सख्त कर रही है। तू
इश्क को नहीं जानता। इश्क का सबक तो वो है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे दर्स देने वाले लोगों ने भी दर्दे इश्क का सबक बयान करने की हिम्मत नहीं की। ये कैफियत गुफ्तनी नहीं है। आशिकों को मौत से डराया नहीं जा सकता, वो तो खुद अपनी मौत के ख्वाहां होते हैं। आशिकों के लिए सिर्फ वही मौत नहीं जो जिंदगी खत्म होने पर आती है, बल्कि उनकी मौत की बहुत सी किस्में हैं। इसीलिए फरमाया गया है मरने से पहले मर जाओ। आशिक सैकड़ों मौतें रखता है और हर वक्त एक जान कुर्बान करता है। इसको हर जान कुर्बान करने पर 10 जानें और हासिल हो जाती हैं। कुश्तगाने खंजरे तस्ली मेरा हर समा इस गैबे जाने दी गरस्त। जो लोग अल्लाह के इश्क से शहीद हो जाते हैं उन्हें हर लहजा एक नई जान अता कर दी जाती है। आशिक की मौजूदा जिंदगी दरअसल मौत की तरह है और मौत ही हकीकी जिंदगी है। दास्तान इश्क के इजहार के लिए सैकड़ों जुबानें हैं, लेकिन उनको समझने वाले बहुत कम हैं। माशूक की सिफात का बयान किसी जुबान में भी मुकम्मल नहीं हो सकता। आशिक की जुबान ही से इश्क की दास्तान बयान हो सकती है। आशिक ये दास्तान बयान करने से किसी मजबूरी की बिना पर तौबा भी कर ले तो काबिल एतबार नहीं, क्योंकि वो फिर इसी तौबा पर तौबा कर लेता है और सूली पर भी वो दास्तान इश्क बयान करनी शुरू कर देता है। वो आशिक भी बुखारा में किसी दर्स के लिए नहीं जा रहा, वो अपनी जान को सदरे जहान पर कुर्बान करने जा रहा है। आशिक का उस्ताद तो हुस्ने दोस्त होता है और उसकी किताब दोस्त का चेहरा होता है। हर चीज का जिक्र आशिक में एक खासियत पैदा कर देता है और उससे आशिक बहुत से मानी अखज़ कर लेता है, क्योंकि हर सिफ्त एक माहियत रखती है और उससे आशिक अपने मकसूद की तरफ पहुंच जाता है। चुनाचे बहुत से औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम के किस्से मशहूर हैं कि मामूली अल्फाज जिनके बिज़ाहर कोई ख़ास मानी नहीं होते, उन पर वजदानी कैफियत पैदा हो जाती है, यानी वो राहत की आवाज़ से भी वजद में आ जाते हैं। बुखारा में बहुत से अलूम हुनर हैं जो तुम सीख सकते हो, लेकिन मुकम्मल जब बनोगे कि ख़वारिजों के लवाज़िम इश्क में से है, ज़रूर इख्तियार कर लो। उस वकील को इल्मुल यकीन की फिक्र न थी, बल्कि वो मुशाहिदा और ऐनुल यकीन हासिल करना चाहता था। जिसको मुशाहिदा हासिल हो जाता है वो महज ज़िक्र अस्मा और सफ़ात का मुतमन्नी नहीं रहता है, उसके लिए खबरें और अकली दलाइल बेकार हो जाते हैं। मुशाहिदा हासिल हो जाए तो इल्म कवी हो जाता है और आम लोगों का आखिरत का इल्म महज खबरों की बुनियाद पर होता है। जिल्द सोम हिकायत नंबर 67। उस आशिक का बुखारा की तरफ रुख करना। उस आशिक ने अपना रुख बुखारा की तरफ किया और उसकी तारीफ करने लगा। ए बुखारा, तू निहायत हसीन मुकाम है। तेरे जंगल चमन जैसे और जीजू दरिया का पानी तालाब जैसा खूबसूरत है। ए बुखारा, तेरी मोहब्बत ने मुझसे मेरी अकल और दीन छीन लिए हैं। मेरा मुकाम तो जूतियों की सफ में है और सदरे जहां का मुकाम बहुत बुलंद है। जब उसकी नजर बुखारा पर पड़ी वो बेहोश हो गया। लोगों ने उसके मुंह पर अर्के गुलाब छिड़का। इन्हें क्या मालूम कि ये इश्क की बेहोशी है और ये तो माशूक की खुशबू से ही रफा होगी। तुम में ऐसी बेहोशी के राज से वाकफियत की काबिलियत नहीं है। तू बेज़ाहिर इंसान है लेकिन उसकी अजमत से आरी है। तू अपनी अकल पर भरोसा करता है और इसरार गैबी से गाफिल है। कुरान में है और उस लश्कर को उतारा जिसको तुम नहीं देखते थे। ये अगरचे फरिश्तों की जमात के बारे में फरमाया गया है, लेकिन लश्कर इश्क का भी ऐसा ही हाल है। जिसने भी उसे देखा तो कहा कि बादशाह तेरे खून के दर पे है। तो सदरे जहां का पसंदीदा मुशीर था। एक कसूर में इत्तेहाम में फंस गया और भाग गया। जबकि तू उससे बच गया था तो फिर क्यों वहां फंसा है? क्या तुझे बेवकूफ़ी यहाँ ले आई है या मौत? कज़ा अक्ल को अहमक बना देती है। जब कज़ा आती है तो ऐसा हो जाता है कि भागने का मौका नहीं रहता और फजा तंग हो जाती है। उसने जवाब दिया, ए लोगो, मैं ऐसा हो चुका हूं जैसे इस्तिस्का का मरीज होता है। अगरचे जानता हूं कि पानी मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर भी पानी का इश्क मुझ में कम नहीं होगा। अगर इश्क की वजह से मेरी मौत वाक़या हो जाए तो मेरी मौत पाकीज़ा होगी, क्योंकि मैं खून जिगर के सिवा अब कोई खुराक नहीं रखता।
मैं अपने महबूब सदरे जहां से भाग जाने पर शर्मिंदा हूं। महबूब से कह दो कि मुझ पर अपना गुस्सा उतार ले। कुरान में है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय ज़िबह करके उसका गोश्त मकतूल पर मारा तो वो मकतूल जिंदा हो गया। लिहाजा मेरे मरने को मौत ख्याल मत करो, ये तो दूसरों की जिंदगी है। मैं मकतूल होकर हर आशिक की हयात का सबब बनूंगा। ए आशिक, तू भी जिस्म को जो कि बमंजिला गाय के है मुजाहिदात के जरिए फना कर दे, तो तुम्हारी नजरी रूहें जो हवास के जरिए गैर महसूस हैं जिंदा हो जाएंगी। इंसान जिस्म की साख्त इसी तरह होती है कि नबातात अपनी गिज़ा जमादात से हासिल करते हैं, तो वो इज्जा अपनी जमादियत छोड़कर नबातियत इख्तियार कर लेते हैं। फिर हैवान अपनी ग़िज़ा नबातात से हासिल करते हैं, तो अज्जाए नबातात अपनी नबातियत छोड़कर हैवानियत इख्तियार कर लेते हैं। वही हैवानी अज्जा जिसमें इंसानी को बनाते हैं। जब इंसान मरता है तो जमादी जिस्म जिसमें मिसाली बन जाता है और इंसान मलाइका की सिफ्त में आ जाता है। फिर इस जिस्म से मुझे मिल्कियत को भी ख़त्म करना है, क्योंकि वो भी फ़ानी है, और अदमे इजाफी इख्तियार करके बहरे वहदानियत में शामिल हो जाना है। मौत तो इस तारीकी की तरह है जिसको अबूर करके आबे हयात हासिल होता है। ए आशिक, तू इश्क का दावा करता है और फिर जान के डर से महबूब से क्यों भागता है? ये नहीं देखता कि लाखों आशिक की जानें खुशी में उसकी तैगे इश्क के सामने तालियां बजा रही हैं और मरने की मुश्ताक है। जब तुझे दरियाए आदियत नजर आए तो अपने कतराए हयात को इसमें डाल दे, तो वो कतरा अपना तशख्खुस खत्म करके बाकी ये बबकाए हक हो जाएगा। फिर उसमें ना कोई कमी आएगी ना तगय्युर पैदा होगा। चूंकि मैं अपने महबूब से भागा था, अब उसके कदमों में कुर्बान हो जाऊंगा। वो फिराक में रोता हुआ सदरे जहान की जानिब चलता जा रहा था। उसने अपने मरने की पूरी तैयारी कर ली थी। सब लोग इस इंतजार में थे कि देखें अब उसे क्या सजा मिलती है। ये अहमक है कि उसने नार को नूर समझा है, लेकिन वो इश्क के करिश्मे से नावाकिफ थे। एक किस्सा सुन ले। जिल्द सोम, हिकायत नंबर 68। एक मस्जिद का किस्सा जो मेहमान को मार डालती थी। इस किस्से से यह बताना मकसूद है कि बाज़ औक़ात लोग किस चीज को हलाकत का सबब समझते हैं, वो कामयाबियों का सबब बन जाती हैं। कस्बाए रह में जहां के इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला थे, एक मस्जिद थी। कोई शख्स रात के वक्त उसमें मौत के डर की वजह से सोता नहीं था। कोई कहता कि उसमें जादू है जिसकी वजह से रात को उसमें ठहरने वाला मारा जाता है। कोई कहता परियां हैं जो रात को कत्ल कर देती हैं। कोई कहता कि मस्जिद को ताला लगा दो कि कोई मुसाफिर गलती से उसमें ना सो जाए। एक मेहमान वहां ठहरने के लिए आ गया और उसने मस्जिद के बारे में ये सब बातें सुनी। वो बहादुर था। उसने सोचा कि आजमाना चाहिए, अगर मेरा जिस्म हलाक भी हो गया तो क्या मुज़ायका है, असल रूह तो बाकी रह जाएगी। कुरान में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, यानी आदम में मैंने अपनी रूह फूंक दी। अगर जिस्म फना हो गया तो वो अल्लाह की फूंक तो बाकी रहेगी, तो मैं फिर नुफ़ख़े हक की सूरत जिंदा रहूंगा, और जब तक उसके सूअर का नफ़ख़ा इस आलम में ना आएगा तो फिर ये मेरे तन से वाबस्ता हो जाएगा। मैं रूह को तन से जुदा रखना चाहता हूं, क्योंकि इस नुफ़ख़े हक के लिए ये जिस्म बहुत तंग जगह है। कुरान में यहूद को अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो। उन्होंने ये तमन्ना ना की। मैं अल्लाह की मोहब्बत और वलायत में सच्चा हूं, इसलिए मौत का मतमन्नी हूं। लोगों ने उसे समझाया कि इस मस्जिद में जो कोई भी रात को सोया है वो सुबह मरा हुआ मिला है। हम तुम्हारी भलाई के लिए ये नसीहत करते हैं कि इस मस्जिद में न ठहर। उसने जवाब दिया, ऐ नासिहो, मैं जिंदगी की दुनिया से पेट भर चुका हूं और बेहिस हो चुका हूं और मौत का मुतलाशी हूं। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया की दुकान के ऊपर से कूद जाऊं और मारफत खुदाबंदी की कान में पहुंच जाऊं। परिंदे को पिंजरे में कुछ अच्छा नहीं लगता। पिंजरे का दरवाजा टूटने पर वो किस कदर खुश होता है। अलबत्ता वो परिंद जो अपने पिंजरे के चारों तरफ बिल्लियां देखे तो वो बेशक पिंजरे में ही रहना पसंद कर ले। जालिनूस यूनान का मशहूर हकीम था, और चूंकि वो महज अलूम अक्लिया ही से वाकिफ था और आखिरत का उसे कोई इल्म नहीं था, इसलिए वो दुनिया में जीते रहने का मुतमन्नी था। अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन आखिरत के बागात की सैर कर लेते हैं, इसलिए वो इस जहान से बेनियाज हैं।
جس کے دل میں نور نہیں ہے وہ ایسا چوہا ہے جس نے صرف بلیوں کی آواز سن رکھی ہو اور چھپنے کی جستجو کرے. اسی لیے وہ اس دنیا کو پسند کرتا ہے جو کہ چوہے کے بل کی طرح ہے. وہ اس دنیا میں رہ کر دنیا ہی کے ہنر سیکھنے پر اور دنیا کو سنوارنے پر ہی اکتفا کرتا ہے. وہ وہی پیشے اختیار کرتا ہے جس سے اسے دنیا کی ترقی ہو، اس لیے کہ اسے عالم آخرت سے رغبت نہیں ہے. جسم کے پنجرے میں بلی اپنا پنجہ مرگی، بخار، پیچس، چیچک یا اور کسی بدنی بیماری کی صورت میں داخل کر دیتی ہے. یہ بلی موت ہی ہے اور امراض اس کے پنجے ہیں. موت بیماریوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتی ہے. انسان دوا کرنے کی مہلت چاہتا ہے. اگر مرض نے مہلت دے دی تو دوا کے ذریعے بچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ مہلت نہ دے تو فوراً موت اپنی کارروائی کر دیتی ہے. انجام کار مرض کا پیادہ آ جائے گا اور وہ مہلت نہیں دے گا. اس لیے مناسب یہی ہے کہ اس دربار میں حاضری کے لیے قبل از وقت تیاری کر لی جائے. اس دنیا میں خواہشات کا انہماک نور خداوندی سے انسان کو جدا کر دیتا ہے، لیکن فوت سے فرار ممکن نہیں ہے. لوگوں نے مسجد کے مہمان سے کہا کہ بہادری نہ دکھا تاکہ تیری جان بچ جائے. نہ تجربہ کار آدمی مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے. مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھا برا سوچا جا سکتا ہے. اولیاء رحمت اللہ علیہ موت سے خائف نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بری صفات بھی اچھی صفات میں تبدیل کر دی جاتی ہیں. چونکہ پھونک بری ہوئی مشک میں ایک سوئی چبھو دی جائے تو اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے. بزدل لوگ ایک ہلکی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. خدا سے عشق و محبت ایک دعویٰ ہے اور اس کا گواہ مجاہدہ ہے. دعویٰ بغیر گواہ کے ناقابل اعتبار ہوتا ہے. مجاہدے کی جفا دراصل اس برائی پر ہے جس کے ازالہ کے لیے مجاہدہ کرایا جاتا ہے. عالم محسوسات میں اس کی مثال یہ ہے کہ کمبل چاڑنے کے لیے اس پر لکڑی ماری جاتی ہے تو وہ دراصل کمبل پر نہیں بلکہ گرد پر ماری جاتی ہے. ماں بچے کو کوستی ہے اور مرنے کی بد دوا دیتی ہے تو اس کا مقصد اس کی بری عادت کی موت ہوتی ہے. جو لوگ مجاہدات کی سختی سے بھاگتے ہیں وہ انسانیت کو تباہ کرتے ہیں. منافقوں کو ان کے دوستوں نے جہاد میں جانے سے روکا تو یہ لوگ نامرد بن گئے. ان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ مل کر نکلتے تو زیادہ خرابیاں ڈالتے. تھوڑے سے بہادر بزدلوں کے مجمع سے برتر ہوتے ہیں. کڑوے اور شیریں بادام اگرچہ صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے باطن میں بہت فرق ہے. یہی حال مومنوں اور منافقوں کا ہے. چونکہ کافروں کو اگلی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اس لیے ان کے دل ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں. جو شخص راستے سے ناواقف ہوتا ہے وہ تیزی سے منزل طے نہیں کر سکتا اور معمولی سے اندیشے سے ٹھہر جاتا ہے. راہ سے واقف انسان کسی کے شبہ ڈالنے سے بھی سست نہیں پڑتا. انسان کی طبیعت کی رنگینی انسان میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے بلند مقام سے نیچے گرا دیتی ہے. جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے سراقہ نجدی کی صورت میں ظاہر ہو کر ابو جہل وغیرہ کو برگلایا تھا. السلام علیکم. پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں. یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیر.